Hello everyone, myself Megha Pathak from DPS Aldwani Lamachor, your bio teacher. So children, today we are going to discuss the topic stakeholders. So who are stakeholders? See, a person who has an interest in something called a stakeholder. And when we see the conservation of forest, we find that there are four stakeholders. Who are these? First, they are the local people who live in or around the forest and they depend on forest products for their living. देखिए जो लोग forest में रहते हैं जैसे tribal people हैं या फिर local people who lives around the forest और ये लोग अपनी living के लिए forest products पे depend करते हैं. And second, forest department of the government who owns and regulates the resources of forest. Second कौन होते हैं? Forest department, government का forest department जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, जो रिसोर्सेज फॉरेस्ट के. एंड सेकेंड, थर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि रॉ मटेरियल्स के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ये भी स्टेक होल्डर्स हैं. एंड फोर्थ, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री बिकॉज दीज आर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर in its original pristine form. देखिए ये लोग कौन होते हैं? ये नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स जो कि नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं. All stakeholders are different, they are not equal, and every stakeholder has his own expectations and requirements from forest. So now let's discuss about these stakeholders in detail. So first are the local people. See, the people living in or around the forest depend on the forest for large quantities of firewood, timber and thatch. देखिए जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के चारों ओर रहते हैं वो फायरवुड के लिए, टिम्बर और thatch के लिए डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट में. एंड फॉर बैम्बू टू मेक huts and baskets for collecting and storing food material, and wood to make tools and other implements for agriculture, fishing and hunting. And they also depend for fruits, nuts and medicines. They graze their cattle in the forest or feed on leaves and fodder collected from forest. So these are the local people who depend on forest products for their living. Now you must be thinking that local people who are completely dependent on forest for their living, so they must be destroying the forest. But ऐसा नहीं है, because people were living in forest for centuries and they had developed practices to ensure that the resources were used in a sustainable way. देखिए लोग जो हैं वो बहुत सालों से जंगलों में रह रहे हैं, चाहे ट्राइबल पीपल हैं या और दूसरे लोग हैं लोकल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, तो उन्होंने फॉरेस्ट का यूज़ इस तरीके से करते हैं कि फॉरेस्ट को नुकसान ना हो. Like instead of cutting down the trees completely, they chipped off branches of the trees or plucked flowers. वो पेड़ को पूरी तरीके से काटने के बजाय उनकी ब्रांचेस जो है उनको कट ऑफ करते हैं ताकि पेड़ वैसे का वैसे ही रहे. And children, when the Britishers took control of forest, they ruthlessly overexploited the forest resources for their own interest. And the local people were forced to depend on much smaller areas. And what was the result of this? This resulted in the reduction of forest cover. और ब्रिटिशर्स ने जो लोकल पीपल थे उनको बहुत ही कम एरिया दिया जिससे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो, और इसका रिजल्ट ये था जो फॉरेस्ट कवर था वो एरिया कम होने लगा, मीन्स फॉरेस्ट जो थे उनका डिप्लीशन हुआ. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड स्टेक होल्डर्स, Forest Department of the government who owns and controls the resources of forest. See, after independence, Forest Department adopted the same mismanaging policies of the Britishers. और इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने वही मिसमैनेजिंग ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जो ब्रिटिशर्स किया करते थे. Like management of forest resources was not delivered to the local people. देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी लोकल पीपल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी. एंड नॉलेज गेन्ड बाय लोकल पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज कम्प्लीटली इग्नोर्ड.
क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया एंड मोनोकल्चर प्लांटेशन वॉज फॉलोड. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्वर्टेड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट to monoculture of pine, teak and eucalyptus to meet the needs of industries. देखिए मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही तरह के पेड़ों को लगाया जाता है, चाहे वो पाइन हो, टीक हो या फिर यूकलिप्टस हो, जिनसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है. जिन पेड़ों की कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होती है उन्हीं पेड़ों को लगाया जाता है. And this led to a loss of large amount of biodiversity in the area. And this in turn affected the needs of local people. और इससे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है और जो लोकल पीपल है उनकी नीड्स भी अफेक्ट होती है, क्योंकि उन्हें जो फूड, मेडिसिन, फॉडर चाहिए होता है वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स आर द इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट हैव अ मेजर वेस्टेड इंटरेस्ट in forest resources because they consider the forest merely a source of raw material for their factories, and they are not interested in the sustainable development of the area. For example, they cut teak or sal trees from a particular forest and then move to another area. देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनका फॉरेस्ट में से केवल रॉ मटेरियल के लिए इंटरेस्ट होता है, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है या जो और लोग फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं उन्हें कितना नुकसान हो रहा है या फिर वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है. इन्हें फॉरेस्ट से केवल रॉ मटेरियल चाहिए होता है फॉर देयर इंडस्ट्रीज. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स, दे आर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुजियास्ट. दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिंसियरली इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ. देखिए ये जो लोग होते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट, इनका कोई अपना पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये केवल नेचर को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं. इन द बिगनिंग एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट started working for the conservation of large animals like lions, tigers, elephants and rhinos. But soon they realized the need to preserve forest as well, because preservation of forest is essential, because forests serve as the habitat for wildlife. It is now understood that biodiversity has to be preserved as a whole, and there have been enough instances of local people working traditionally for the conservation of forest. For example, the Great Himalayan National Park contains within its reserved area alpine meadows which were grazed by sheep in summer. And when this national park was formed, this practice was put to an end. But after some time, it was found that this led to problems, as without grazing by sheep, grass grew very tall and then fell over, preventing further fresh growth. देखिए जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसमें एल्पाइन मेडोज़ हैं, और ये जो मेडोज़ हैं ये इनमें शेफर्ड अपनी शीप्स को गर्मी के दिनों में चराते थे. लेकिन जब ये नेशनल पार्क फॉर्म हुआ तो इस तरह की प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया. लेकिन बाद में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही थी. क्यों? क्योंकि जो ग्रास थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी और इससे जो नई ग्रास उग रही थी वो प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पा रही थी. इट प्रूव्ड दैट मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट बाय यूजिंग फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. और इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इनमें अगर लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हम इन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते हैं.